class we had started with list. मैं हल्का सा एक overview दे रही हूँ and then I'll move forward. So we did creation of list. We talked about how to create a list. What are lists? Lists are immutable items. They can be of similar kind. They can be of different kind. There's no mandatory that all objects have to be of one type only. They can be strings. They can be integer, float. So it can be different kinds. So then we started with just a second, beta. बेटा आप लोग बीच में आते हो ना, so it creates a lot of. मैं अब किसी को एंट्री नहीं दूंगी. It is too much of juggling with screen. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay, so this was what we did in the last class. We started with what are lists, what kind of objects are available in list, how to create a list, and the important thing that lists are always there in square brackets like this. It is mandatory. You will have lists like this only. Whenever you're giving a list directly to create, you have to write square brackets like this. Now, then we talked about what are the functions which can remove or delete the elements or delete the whole. So in order to delete the whole list, we can use del. In order to remove the particular elements, we use the function remove, and you have to tell the element which has to be removed. तो ये जितने भी functions है बेटा आपको ये याद होने चाहिए. इनका तरीका लिखने का, syntax लिखने का भी याद होना चाहिए. And this is going to not be like you need to memorize it, but it's like the more you practice, it becomes very easy. Okay. So this was what we did. Then we talked about list of operators. जैसे concatenation, repetition, in or is functions आपने पढ़े थे पहले. Similar kind of operators are here also. Slicing is of exactly similar kind as we did in strings. We have start, stop, and step. Step means how many elements we need to skip before slicing. Okay. Okay. Then we talked about examples, negative indexing, positive indexing. I think हम ये सब कर चुके थे. But now I'll not allow to enter, please. ठीक है. List methods, append, count, extend, index, insert, and pop. These were the functions which we said कि they are going to be used in any kind of list. So these are the functions आपको पता होने चाहिए. Appending can add an element at the end of the list. आप append function जैसे string में भी use कर रहे थे. Similar kind of thing is here. You have to give an argument here. You have to give an argument here means what data you want to attach at the end of the list. You have to write here. That is the part of syntax. Count is the number of elements that can come out when the total list is counted. तो ये directly आपको function दे देगा. Now there is an extend function. आगे हम discuss करेंगे. I'm just going to show you in this slide that you can extend a list with another list. ठीक है. So let me show you these examples directly here. So append method adds a single element to the existing list. This is what you have already done. I'm just reading through it. This is easy. So I need not give मैं आपको दोबारा रन करके नहीं दिखाऊंगी. ठीक है. The append method only modifies the original list. ठीक है. It does not return any value. It modifies. ये change कर देता है original list को. The append methods take a single item and adds it at the end of the list. You need to just remember that. Item can be number. जो भी item आप लिख रहे हो यहाँ bracket में जो item वो number भी हो सकता है, string भी हो सकता है, another list भी हो सकता है, dictionary भी हो सकता है. So this was the syntax of this function. uh, just a second, you're not able to see, I think. So this is the function list dot append, and you have to write in bracket the item, what item you're going to append. Now this is the append method examples, adding the element to the end of the list. Let's say this is my list with hi and hello, two strings which are part of list. You print the odd list, you will get hi and hello like this. You use list dot append and you write in quotes whatever element you want to append. Let's say welcome is another list, another string that you want to append. So it will be like coming now. Updated list आपकी इस तरीके से print होगी जब मैं list को print करने के लिए command दूंगी. Hi, hello, and welcome. It's obviously clear. Now adding a list to list, I can do this also. हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं. नाउ सी द डिफरेंस. बेटा जब आपने लिस्ट डॉट अपेंड किया तो आपने कोट्स में वेलकम दिया था. कोट्स में वेलकम दिया था तो इट इज अज्यूमिंग दैट इट इज एन आइटम ऑफ स्ट्रिंग टाइप.
अब यहाँ पर आप एक लिस्ट वन नाम की एक अलग लिस्ट बना रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देखे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा इन सब चीजों को। स्क्वायर ब्रैकेट देखा लगाया है, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक लिस्ट है। सो आई कैन यूज द फंक्शन लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट लिस्ट वन। इज द सेम चाइल्ड कमिंग अगेन? ओके, सो दिस वाज व्हाट वी डिड कि हम लिस्ट के अंदर एक आइटम भी अपेंड कर सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं। सो दैट इज अप टू अस हाउ वी आर यूजिंग दैट अपेंड फंक्शन। बट आपको जो आर्ग्यूमेंट देना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, दैट आप वो एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर अपेंड कर रहे हो या आप पूरी एक लिस्ट अपेंड कर रहे हो। द लिस्ट विच यू आर गोइंग टू अपेंड हैज टू बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, अदरवाइज इट विल नॉट एंटरटेन इट एज अ लिस्ट, it will not entertain it as a list, it might entertain it like a normal what should I say, normal string element. ठीक है, just sec बेटा. Okay, let's move to the next thing, count method. Count method counts how many times an element has occurred in a particular list. एक element उस list में कितनी बार आया है. Let's say 5 is coming 3 times, तो count will give the frequency. Count will give the frequency as to how many time a particular element has turned up. The count methods take a single argument. But आपकी class is exactly doing the thing which I don't want. Why you people are joining at 9:16? And I feel bad that कि मैं आपको अंदर entry नहीं दे रही हूँ फिर. I मैम सॉरी, understand. I मैम सॉरी, understand सबके एक्चुअली internet. लाइट नहीं थी। बेटा मेरे को थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती आप लोग अंदर आओ, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स यू टू बी इन क्लास, नोबडी वुड से कि दैट डोंट एंटर द क्लास, बट थोड़ा सा मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आई देन फील बैड एज इफ आई एम डूइंग समथिंग वर्स दैट नॉट अलाउइंग ए चाइल्ड टू एंटर। ठीक है, हाँ ट्राई तो योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट कि हो जाता है, आई आई डोंट अंडरस्टैंड। रिपीट। ठीक है बेटा, so where were we? So count method would be giving you basically the frequency of the elements coming in. So the element, अगर आप स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर राइट लिखिएगा ब्रैकेट में एलिमेंट, एंड दैट एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग, यू विल बी एबल टू गेट एज द रिजल्ट. So these are inbuilt functions. So the best part of Python is that you have lot many inbuilt functions. यही एक्सरसाइज करने के लिए बेटा आपको लूपिंग लगानी पड़ती, फॉर लूप लगाना पड़ता, कंपेयर करना पड़ता, कंपेयर होके सेम आता तो आप काउंटर बढ़ाते. सो ये लॉजिक वाली चीजें जो अगर किसी ने बेसिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में सी सी प्लस प्लस पहले करी होगी बिफोर कमिंग ऑफ पाइथन, दे वुड हैव डन इट ऑन देयर ओन. नाउ यू आर गेटिंग जस्ट, आपको बने बनाए फंक्शंस मिल रहे हैं एंड यू आर हियर टू यूज देम फॉर योर एप्लीकेशन, वेदर इट इज डेटा साइंस, वेदर इट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, वेदर इट इज रोबोटिक्स, आप इन सब फील्ड में इन फंक्शंस को यूज करके अपना काम कर सकते हो. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. ठीक है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अ लेमैन जिसको ज्यादा प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी नहीं है, वो भी पाइथन के फंक्शंस को अगर समझ लेगा तो डायरेक्टली कॉल करेगा और यूज करेगा. उसको अंदर लॉजिक लगाने की या लॉजिक लगा के मेहनत करने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेटर ऑन व्हेन ही इज डूइंग द एप्लीकेशन वहां उसको लॉजिक लगाने की जरूरत है, तो वो लगानी पड़ेगी. सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इज देयर इन प्रोग्रामिंग. Basics are like given, all these small basics which give a lot of effort to be made, वो आपके लिए एक छोटा करके एक फंक्शंस की फॉर्म में बना के दे दिए गए हैं. And it is up to you how you use those functions for your application, whatever is the application, whether it is in the field of data science or in the field of website designing or in the field of robotics. सब जगह पाइथन यूज हो रही है, आपको बस ये फंक्शंस और ये सब लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए. So this is the count functions method which we have which we discussed right now. So this is the example. आपको list दिया हुआ है यहाँ पर बेटा, list में बहुत सारे characters दिए हुए हैं. It is like indirectly you can say these are the strings. आपने list count I का print करना है तो you have to give in the quotes I. Single quotes में आपने I लिखा है क्योंकि that is a string element. Similarly, if you want to count the frequency of O, you are able to see here count is 1, count of I is 1 and count of I is 2. It is coming 2 times. Similarly, आप count कर सकते हो tuple के अंदर, एक list के अंदर
भी एक्सटेंड कर सकते हो. लेट मी रीड दीज लाइंस फॉर यू. Extend method takes a single argument, a list, and adds it to the end. This method also add elements of other native data type. That's what I said. अदर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को भी अटैच कर सकता है या ऐड कर सकता है या अपेंड कर सकता है एट द एंड ऑफ योर लिस्ट. तो दूसरे डेटा टाइप कौन से बेटा? टपल भी ऐड अपेंड हो सकता है इसके इसके एंड में, और लिस्ट भी हो सकता है. सो यू नीड टू राइट इट लाइक दिस. लेट्स से व्हाट इज योर लिस्ट नेम. अगर आपका लिस्ट का नाम है लिस्ट वन, देन यू राइट डॉट, देन यू राइट एक्सटेंड, और जो आप लिस्ट दूसरी एक्सटेंड करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, उसका नाम लिखिए. सो लिस्ट टू. सो यहाँ पर आप देखिए, प्लीज रीड द नोट व्हाट इज गिवन योर. द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट टू, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट टू आर एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट वन. एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है. द लिस्ट एक्सटेंड लिस्ट टपल टाइप. अगर मैं यहाँ पर एक टपल दे देती हूँ, तो देन द एलिमेंट्स ऑफ द टपल्स आर आल्सो एडेड. लेट मी गिव एन एग्जांपल. यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा बेटा. लेट्स से दिस इज वन लिस्ट, दिस इज लैंग्वेज वन इज अनदर लिस्ट, एंड नाउ आई एम एक्सटेंडिंग. तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे. लिस्ट में लिस्ट ऐड नहीं होगी बेटा, ये ध्यान से देखिएगा. लेट मी गिव यू अ डिफरेंस. यहाँ पर आप देखिए, लिस्ट लैंग्वेज डॉट एक्सटेंड लैंग्वेज वन लिखा ब्रैकेट में, एंड प्रिंट कराने की कोशिश करी नई लैंग्वेज लिस्ट को. सो इट इज कमिंग लाइक दिस: सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोबोल. जावा, कोबोल आर नाउ पार्ट एज एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. नॉट दैट कि मैंने जावा और कोबोल के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है और वो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो रहा है. लेट मी शो यू व्हाट वी डिड इन अपेंड. दिस इज द डिफरेंस. थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा. जब आपने अपेंड मेथड यूज किया था बेटा, और आपने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डाली थी, तो एलिमेंट्स नहीं ऐड हुए थे उसके लिस्ट में, पूरी लिस्ट बन के ऐड हुई थी अंदर. आप देख रहे हैं अपडेटेड लिस्ट में हाय हेलो तो पहले ही था. वेलकम नाम की एक लिस्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, वो अपेंड होके आया था. तो दैट मीन्स दिस इज लिस्ट इन अ लिस्ट. But here, what extend has done is extend has increased the elements. एलिमेंट्स बढ़ा दिए उसने. यहाँ जावा और कोबोल अटैच किया है, लेकिन जावा और कोबोल लिस्ट की फॉर्म में ऐड नहीं हुआ है, एलिमेंट्स की फॉर्म में ऐड हुआ है. आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट क्लियर कि एक्सटेंड में क्या हो रहा है और अपेंड में क्या हो रहा Yes, है. ma'am. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यू कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर लिस्ट एक्सटेंड नहीं हो रही है, यहाँ पर एलिमेंट्स एक्सटेंड हो रहे हैं. सो ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल and set to the list. So let's say this is your already made list with C, C++, Python as the elements. लैंग्वेज मैंने एक और टप्पल अंडरस्कोर टप्पल नाम की एक लिस्ट बनाई, जावा को बोल. एक लैंग्वेज मैंने सेट टाइप का बनाया. अभी आपको सेट नहीं पता है बेटा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू. जैसे एक टप्पल होता है, ऐसे एक सेट होता है. सेट को हम राउंड कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. टप्पल जो अभी आपको दिखाया था वो राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है. सो यू हैव जस्ट मेड टू what should I say variables of tuple type and set type. यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. लैंग्वेज डॉट एक्सटेंड फंक्शन ये यूजिंग लैंग्वेज जो आपका जिसमें जिस लिस्ट में आपको एक्सटेंड करना है वो यू आप पहले लिखेंगे. देन यू विल राइट डॉट, देन यू विल राइट एक्सटेंड, एंड देन ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो, जिसके एलिमेंट्स को आप एक्सटेंड करना चाहते हो. सो इफ यू आर राइटिंग लैंग्वेज अंडरस्कोर टपल, तो लैंग्वेज अंडरस्कोर टपल मीन्स आप ये वाले एलिमेंट्स एक्सटेंड करना चाहते हो. Similarly, then you are asking it to print on screen, so you see the difference. This is C, C++, Python, Java, COBOL. ठीक है. This is the new language. अब आप ये देखिए, Java, COBOL were tuple elements, but they are now added as list elements. तो basically extend ये काम करता है. Let us see it for set also. आपने लैंग्वेज डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट में लिखा लैंग्वेज अंडरस्कोर सेट. तो इस कमांड से आप क्या करना चाहते हो, लैंग्वेज अंडरस्कोर सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स, उनको आप अपनी लैंग्वेज नाम की लिस्ट में एक्सटेंड यानी इंसर्ट करना चाहते हो एट द एंड. बट यू आर नॉट इंसर्टिंग अ सेट एज सच, यू आर इंसर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. अगर मैं सेट इंसर्ट करती बेटा, तो यहाँ सी और ये नेट और डॉट नेट और लेट मी शो यू हियर, डॉट नेट और सी हैश पर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए आते. बट यू आर नॉट एबल टू सी द कर्ली ब्रैकेट हियर बिकॉज एलिमेंट्स हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम द सेट एंड दे हैव बीन इंसर्टेड एट द एंड इन द लिस्ट. So this was about the extend function. ये प्लीज आप मेथड्स बेटा सब ट्राई करिएगा.
आप आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, बट आप ट्राई जरूर करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम. आई वांट टू फिनिश ऑफ दिस थिंग as soon as possible, so that we move to numpy, sky and matplotlib. They are further more important topics. तो अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, आप स्लाइड में देख के रन करिए, हाथ से आप चला के देखिए, चाहे यही एलिमेंट्स ले लीजिए, वट एवर योर वे यू वांट टू डू इट, बट देन डू रन देम, बिकॉज रन करके ही आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ मेरा ऐसा आ रहा है, स्लाइड पे भी ऐसा लिखा हुआ है. There's another method which is called as index method. Index method is a search method in which if I want to find a particular given element in the list, it returns me the position. कि कौन सी position पे रखा है वो element. However, if the same element is present more than once, the index method returns the smallest position. Smallest पहला index return कर देगा. मान लीजिए index 5 और index 8 पे दोनों पे ही same element रखा है, output मेरा index 5 आएगा. ठीक है. Index in Python start from 0 and not from 1. This is what we have already done. Positive indexing में it starts from 0. The negative the index method returns the index of the element. Index return करता है, ठीक है. तो index का मतलब ये नहीं कि पहली position return करेगा. पहली means 0 return करेगा. तो 0 automatically gives you a hint that it is the first element of your list and its position is 0. The index method takes a single argument. वो एक single argument लेता है, वो आपसे एक element पूछता है कि कौन से element का index आपको निकलवाना है. So that element has to be written in the bracket like this, जो आपको नीचे syntax में दिखाई दे रहा है. So element that has to be searched has to be written like this. Let's move forward with the example. Let's find the position of an element present in the list and not present in the list. Let's say this is the list. This is the list of various elements, single characters. Print the count of I is list dot index I. Now list, ये अब यहाँ पर count लिखा है बेटा, this word is wrong. आपको position लिखना चाहिए था, the position of I is. So अब जैसे ही हम list dot index bracket I लिखेंगे, इसका मतलब है I यहाँ पर आ रहा है, so it has to give me a position as 1. See, it is coming out as 1. Count of O, यहाँ count ना होके position of O होना चाहिए था. Position of O means list dot index bracket 0 O. So O is coming at two places, this as well as this. Can anybody tell me what is this position? Open up your mic and say 3. 3, 0, 1, 2 and 3. So it will give me 3 as the output. It won't give me 4, 5, 6 as the position. Sixth पे भी है लेकिन it won't give me the answer. This is the way the It index will work function. for the first occurrence. बेटा repeat करो question. It will work for first occurrence, no? बेटा I'm not able to get you what you're speaking. थोड़ा clearly बोलो. बेटा दोबारा repeat करो आप question please. Can you write in the chat box what you want to ask? Did anybody hear what she was saying बेटा? No, ma'am. चलो कोई नहीं, बेटा आप बाद में पूछ लीजिएगा. सो लेट्स सी द इंडेक्स. उसने z कैरेक्टर पूछा है. z कैरेक्टर दो इट इज नॉट इन द लिस्ट, सो इट वोंट बी गिविंग द आंसर. तो वहां पर वो वैल्यू एरर देगा. सो इफ द डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, इट विल नॉट गिव जीरो और इन्फिनिटी और समथिंग अदर, क्योंकि जीरो तो अपने आप में एक पोजिशन है. इट कैन नॉट गिव जीरो. इट कैन नॉट गिव अननेसेसरी अनदर आइटम या अनदर पोजिशन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लिस्ट. जैसे मान लीजिए अगर इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 के बाद 9, 10 एक्स्ट्रा कोई एम्बिगुअस नंबर नहीं दे सकता वो. So then when the element is not present, then error has to be presented, and the error would be presented like this: value error, z is not in the list. So this was about the index method. Now we are to the next up to the next method, which is insert method. Now what does insert method does? So insert method inserts the element in the list. सबको पता है list are mutable. तो mutable means मैं उनको change कर सकती हूँ, तो मैं उनके अंदर insertion कर सकती हूँ, deletion भी कर सकती हूँ. So insert method inserts an element to the list at a given index. तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से index पे डालना है उस element को. आप इस फंक्शन को कॉल करके इंडेक्स पोजीशन पे, तो यू हैव टू गिव टू आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली. जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, यू हैव टू गिव टू आर्ग्यूमेंट्स. मेरे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए सबको. आर्ग्यूमेंट्स मींस ब्रैकेट के अंदर ये जो चीजें लिखी हैं इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. सो यू हैव टू गिव टू आर्ग्यूमेंट्स. वन इज इंडेक्स, दैट मींस किस पोजीशन पे लगाना है, एंड देन द एलिमेंट
कि क्या एलिमेंट लगाना है. सो इंसर्ट फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. One is index position where the element needs to be inserted, and the element is that what is the element that has to be inserted in the list. So insert method not only inserts the element to the list, it does not return any value. वो सिर्फ इंसर्ट करता है, आपको कोई रिटर्न करके फंक्शन नहीं देता है. इस लाइन का मैं मतलब बता दूं आपको, इट डज नॉट रिटर्न. जब आपका कोई फंक्शन रिटर्न कुछ कर रहा होता है बेटा, तो देन यू हैव टू हैव समथिंग सेव्ड इन द वेरिएबल. सो देन आप लिस्ट डॉट इंसर्ट नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे ए इज इक्वल टू लिस्ट डॉट इंसर्ट. ठीक है. तो जो भी लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन से रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो ए के अंदर सेव हो जाएगी, ए या बी या सी जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो. सो दैट इज व्हाट अ सिंपल लाइन इज, दैट इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. हमेशा कोई ना कोई फंक्शंस जो बनाए जाते हैं, या तो वो रिटर्न कर रहे होते हैं या वो रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं. सो दोस फंक्शंस हु आर नॉट रिटर्निंग, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू. जो रिटर्न कर रहे होते हैं फंक्शंस, उनका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, और वो रिटर्न अगर करते हैं तो दो रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव होनी चाहिए. दैट्स व्हाट यू राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग. ठीक है. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन. It's the example here on the screen. If you have vowels as the list, A, E, I, O, U, not I is not here. Old vowel is this. I want to insert E. ठीक है, मिस हो गया था ई, उसे इंसर्ट करना है. कौन सी पोजीशन पे करना है? वन. सो यू राइट वॉवल्स डॉट इंसर्ट position at which you want to insert one, and then the element comma करके. So then the new list, if you want to print it, vowels की आप देखोगे first position पर, यानी index one position पर e has been inserted. These are very simple functions बेटा. It's all just that आपको बने बनाए मिल रहे हैं, आपको इजी लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो देर इज लॉट ऑफ एक्सरसाइज दैट हैज बीन डन विच यू आर नॉट एबल टू सी एज ए यूजर. बट अगर मैं एज अ प्रोग्रामर आपको बोलूं, तो आपको ये सब लॉजिक डेवलप्ड आने चाहिए. तो अगर आप ये पाइथन ना करके कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते हैं, आई वुड हैव बीन टीचिंग यू देयर, तो आई वुड हैव आस्क्ड यू टू राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर एरे या लिस्ट. then you would have done for loop लगाते, compare करते and all. So that exercise is a bit saved here in programming language Python. So this is the insert method. Now you can not only insert one single element in a particular list, you can also insert a tuple in the list. ठीक है. सो लेट्स से एक लिस्ट ऑलरेडी आपके पास है जिसमें 1 2 नाम का सेट है. ये सेट है बेटा, देखिए कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं. ये आपका 5 6 7 एलिमेंट्स की लिस्ट है. तो लिस्ट के अंदर ही एक सेट है, लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट है. ये आपने ओल्ड लिस्ट प्रिंट करा दी तो वो एज इट इज प्रिंट हो गई. मान लीजिए आपने एक नंबर इज इक्वल टू टपल नाम का एक टपल बनाया विथ 3 and 4 एज द एलिमेंट, एंड यू हैव राउंड ब्रैकेट लाइक दिस. नाउ यू आर राइटिंग लिस्ट डॉट इंसर्ट. First position आपने दे दी index position, and then you said which element has to be inserted. Now this element number tuple has to be inserted, number underscore tuple. So then you find an updated list to be printed as. अब आप देखिए क्या होगा, 1 2 तो set as it is होगा. उसके बाद 3 4 आपने insert किया बेटा. I hope you are able to see 3 4 is here, which is now inserted as a tuple into it, and then 5 6 7 has been shifted to a next position. Next there is a pop method. Now you should know what is this pop method and how it works. Pop is another method that takes a single argument, यानी वो index लेता है. Pop नाम से पता चलता है बेटा, pop means निकालना किसी चीज को. तो अब आपको यहाँ जो pop फंक्शन मिल रहा है पाइथन के अंदर इन लिस्ट, it is actually asking you an argument that means index to and removes the element present at the index from the list. If the index present to the pop method is not in the range, अगर index उस range में ही नहीं होगा तो obviously it will show an error, that index error, that pop index is out of range. बट अगर वो इंडेक्स पार्ट का होगा, लिस्ट में आपकी पार्ट होगा यानी प्रेजेंट होगा वो इंडेक्स, देन आपका वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. द पैरामीटर प्रेजेंट टू द पॉप, जो भी आपने पैरामीटर यानी इंडेक्स प्रेजेंट किया होगा, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल. अगर आप नहीं देते हैं, इफ नो पैरामीटर इज पास, द डिफॉल्ट इंडेक्स इज -1 इज. अब नाउ -1, ना -1 इज ए नेगेटिव इंडेक्सिंग. नेगेटिव इंडेक्स मीन्स आपका सबसे लास्ट का एलिमेंट होता है. फर्स्ट ईयर आपको क्लियर है ये बात. नेगेटिव इंडेक्स -1 किसका होता है? लास्ट. सो अगर पॉप में आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, इफ यू आर नॉट गिवन एनी इंडेक्स हियर इन पॉप, इट इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टेक्स इट -1. सो दैट मीन्स अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन चलाती हूँ लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो मेरा -1 यानी लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर देगा, रिमूव कर देगा. ऑल्सो द पॉप मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट्स एट ए गिवन इंडेक्स एंड अपडेट्स. तो ये रिटर्न करता है. नाउ आई विल शो यू कि ये रिटर्न करता है अगर, तो हाउ डू आई डू इट.
हाउ डू आई राइट दिस फंक्शन, और ये लिस्ट को अपडेट कर देता है. सो लेट्स से टेक एन एग्जांपल, पॉप एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट. आपकी लिस्ट है, आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स पता है जिसको आपको पॉप कराना है, और आपको लिस्ट हट नहीं बनानी, पॉप कराना है मतलब वो एलिमेंट हटाना है. ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स से आई हैव अ लिस्ट लाइक दिस. नाउ अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, लैंग्वेज डॉट पॉप ब्रैकेट में 3. ना यहाँ मैंने इक्वल टू भी लगाया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल भी बनाया हुआ है, रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन बोली थी, दिस फंक्शन रिटर्न समथिंग, इट रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर, जिस एलिमेंट को आप पॉप कर रहे हो वो रिटर्न होके आता है. तो लेट्स से मैं थर्ड एलिमेंट को पॉप करना चाह रही हूँ, थर्ड इंडेक्स को पॉप करना चाह रही हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 इज पाइथन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. थर्ड पे फ्रेंच रखा हुआ है, तो जो फ्रेंच डेटा पॉप होगा वो वैल्यू होके सेव हो जाएगी किसके अंदर, रिटर्न वैल्यू में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है. सो बेसिकली व्हेन दिस फंक्शन वुड बी वर्किंग लैंग्वेज डॉट पॉप ब्रैकेट 3, it will give the result as French, and that French will be stored here. This is the reason why why I was explaining the functions which return something, the functions which don't return something. So this is the function which is returning something. तो return करने में वो return होकर जब बाहर आता है तो किसी वेरिएबल में सेव होना चाहिए. So that is what we have to write like this. आप अगर ये नहीं लिखेंगे ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, वो आपसे कहेगा इट इज अ रिटर्निंग फंक्शन, आपको इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए. So now let's see return value में क्या स्टोर होकर आता है. तो if I want to print return value and then I ask the printer to print the return value function, so then आप यहाँ देखेंगे कि आपकी return value French print हुई है. अब अगर आप अपडेटेड लिस्ट भी प्रिंट करना चाहते हैं तो लेट्स से आई वांट टू प्रिंट, यहाँ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ लिस्ट होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे भी लैंग्वेज डॉट पॉप लिखा है, या तो यहाँ लैंग्वेज कर दीजिएगा इफ यू आर ट्राइंग योर फंक्शन, यहाँ मेक इट लैंग्वेज सो दैट लैंग्वेज डॉट पॉप वर्क्स, सो दैट लैंग्वेज हियर ऑल्सो वर्क्स. ठीक है, यहाँ लिस्ट नहीं होना चाहिए वर्ड. तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि चीजें ध्यान से करिए, ये नहीं कि रट लिया आपने बस कि यहाँ पर मैं लिस्ट ही लिखूंगी. यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी से मैं एक्स वाई जेड भी लिख सकती हूँ, बट देन आई हैव टू राइट हियर एक्स वाई जेड डॉट पॉप bracket like this. So if I'm returning, if I'm printing language now, so you will see that French would be removed and उसकी जगह पर C आ जाएगा. तो पॉप का मतलब ही ये होता है बेटा, उस इंडेक्स एलिमेंट को हटाया और अगले वाले इंडेक्स को पीछे की जगह ले गए. सो यू विल हैव द इंडेक्स लिस्ट नाउ, या लिस्ट नाउ अपडेटेड लिस्ट एज पाइथन जावा सी प्लस प्लस एंड सी. सो दिस वाज पॉप मेथड. अब पॉप मेथड में अगर वो इंडेक्स जो आपने पास किया है वो प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा दैट लेट्स सी इट्स एग्जांपल, इफ इट इज इंडेक्स इज नॉट पास, आपके पास लैंग्वेज नाम की एक लिस्ट बनी हुई है ना, यहाँ उसने अब लैंग्वेज कर दिया लिस्ट की जगह. देन रिटर्न वैल्यू लैंग्वेज डॉट पॉप, नो आर्ग्यूमेंट वाज रिटर्न हियर, दैट मींस बाय डिफॉल्ट इट विल टेक इट एज -1. तो जब -1 लेगा तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, एनीबडी ओपन अप योर माइक एंड से. C. सी वुड बी एग्जिटेड, वेरी गुड. सो अगर आप यहाँ देखोगे तो रिटर्न वैल्यू को अगर हम प्रिंट भी कराते तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू सी आई है, देखो. ठीक है, देन अपडेटेड लिस्ट अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो पाइथन जावा एंड सी प्लस प्लस वुड बी लेफ्ट आउट एज द लिस्ट विच इज हियर. देन रिटर्न वैल्यू इसने दोबारा करा है और एक बार और लैंग्वेज पॉप किया है -1. तो नाउ दिस टाइम -1 इज दिस नाउ, ये लास्ट एलिमेंट हो गया है मेरा. ठीक है, तो सी प्लस प्लस शुड बी पॉप्ड अप नाउ. सी प्लस प्लस पॉप्ड अप हो जाएगा तो मुझे यहाँ सी प्लस प्लस दिखाई दिया. Next is updated list you want to print now. Again, language is printed, so Python and Java would be left, which are here. So this was about pop method. Next method is copy or aliasing methods. Now please try to understand this method properly, beta. ठीक है, कॉपी मेथड रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट. अगर आपको एक लिस्ट से दूसरी कॉपी बनानी है, एक लिस्ट यानी मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज नाम की लिस्ट बनाई और मुझे लैंग्वेज 1 नाम की एक और लिस्ट बनानी है जिसमें वही सेम एलिमेंट्स हो जो लैंग्वेज के अंदर है. सो आई कैन डू इट, I can do it by making a copy like this. So the list can be copied with equal to operator. तो अगर मेरे पास एक old list है 1 2 3, मैं एक न्यू लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और इक्वल टू ओल्ड लिस्ट कर देंगे, जैसे हम करते हैं ना, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू a, तो दैट मींस वट एवर वैल्यू ऑफ a इज देयर इट विल गो इनटू b. सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर. बट द प्रॉब्लम विद कॉपिंग इन द लिस्ट इन दिस वे इज दैट इफ यू मॉडिफाई न्यू लिस्ट, अगर आप न्यू लिस्ट को मॉडिफाई करते हो, जो आपने ये वाली लिस्ट बनाई इसको मॉडिफाई करते हो, old list will also get modified. This is what usually does not happen. If you say a is equal to 5 and b is equal to a और आप b वेरिएबल में कुछ चेंजेस करो, a चेंज नहीं होता, a वो ही रहता है जो था. बट यहाँ इस केस में if I'm using this equal to operator like this and the
कॉपिंग इज ऑफ लिस्ट, तो अगर मैं न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करती हूँ तो ओल्ड लिस्ट में भी चेंज होगा. दिस इज द मेथड which this is the thing which is happening in this way. It can be sorted out, we'll see in the next slide. So the syntax is that you write the variable of a new list, whatever new list you are writing, xyz जो भी नाम दे रहे हो, is equal to your old list. Let's see the example. Copying a list, I have the old list 1 to 3, I make a new list and equal to, put it equal to old list. अब मैं क्या करती हूँ, न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करती हूँ, ठीक है. तो इफ आई डू सम चेंजेस इन न्यू लिस्ट, लेट्स से वी आर अपेंडिंग, तो मैं न्यू लिस्ट प्रिंट कराऊंगी और मैं साथ साथ ओल्ड लिस्ट भी प्रिंट कराऊंगी. तो यू विल सी दैट न्यू लिस्ट के अंदर अगर मैंने ए अपेंड किया तो इट शुड बिकम 1 2 3 कॉमा ए, लाइक दिस. ए इन कोट्स बिकॉज कोट्स हैज बीन एडेड हियर, ए इज अ स्ट्रिंग एलिमेंट. अब मैं अगर न्यू लिस्ट को के बाद ओल्ड लिस्ट भी प्रिंट कराती हूँ तो यू विल सी दैट आउटपुट विल कम समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 कोट्स ए, लाइक दिस. तो दैट मीन्स अगर आपने कोई लिस्ट कॉपी करी है, अलाइज करी है बाय द यूज ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर लाइक दिस, योर लिस्ट अपेंडिंग और चेंजिंग ऑफ वन लिस्ट विल इम्पैक्ट द अदर लिस्ट ऑल्सो. ये बेटा प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट वंस विद योर हैंड. आप चलाइएगा अपने पाइथन पे, टेक दीज एग्जांपल्स, run them, and then you will be able to see it. Now, this is what was happening when I was using equal to operator like this. Now, if I want to do shallow copying, that means हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी ओरिजिनल में कुछ चेंज हो. मैं तो न्यू लिस्ट में कॉपी किया था, सो आई डोंट वांट कि अगर मैं न्यू लिस्ट में कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो मेरी ओरिजिनल में भी चेंज हो या पुरानी जिससे कॉपी किया उसमें भी चेंजेस हो. So there's another method. So we need the original list unchanged. When the new list is modified, you can use a copy method. एक copy नाम का मेथड है. आप इक्वल टू मत यूज करिए, इक्वल टू मत लिखिए, जैसे न्यू लिस्ट इज इक्वल टू दिस. आप कॉपी नाम का मेथड से उसको यूज करिए, कॉपी करिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शैलो कॉपिंग. द कॉपी मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स. कॉपी मेथड के पास कोई पैरामीटर्स नहीं होते, उसे देने नहीं होते. आपको लिखने का तरीका होता है कि जो आपको न्यू लिस्ट बनानी है, यू राइट लाइक दिस, न्यू लिस्ट जो भी वेरिएबल है इज इक्वल टू जो आपकी लिस्ट है, पुरानी लिस्ट, लेट्स से उसका नाम सिर्फ ओल्ड लिस्ट था या लिस्ट था, सो यहाँ पर आप ओल्ड लिस्ट डॉट कॉपी लिख दीजिएगा. यहाँ इसने लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट मींस कौन सी लिस्ट. आपने पुराना एग्जांपल से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ओल्ड अंडरस्कोर लिस्ट कॉपी डॉट कॉपी, ठीक है. सो दिस इज द सिंटैक्स. सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो आई हैव अ लिस्ट लाइक दिस, ठीक है. आई हैव अ न्यू लिस्ट विच इज लाइक, एक तरीके से मैंने इसको 1 2 4 को पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है. देयर इज अनदर वे एंड आई एम अपेंडिंग दिस एंड देन आई कैन प्रिंट इट, यू विल सी द थिंग्स आर सेम. आई कैन अपेंड ऑल्सो. अब न्यू लिस्ट में चेंज हो गया है, ओल्ड लिस्ट में चेंज नहीं हुआ है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शैलो कॉपिंग. दिस कैन बी डन यूजिंग स्लाइसिंग ऑल्सो. वी हैव नॉट रिटन हियर न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है. सो दिस इज द वे. अगर मैं यहाँ खाली लिस्ट लिखती तो ये नॉर्मल वैसा वाला कॉपी होता जिसमें कि अगर आप न्यू में चेंजेस कर रहे हो तो नेक्स्ट में भी पुराने में भी चेंज होंगे. नाउ वी हैव नॉट यूज दैट मेथड, वी हैव यूज, आप कॉपी मेथड भी यूज कर सकते हो और आप स्लाइसिंग मेथड से भी यूज कर सकते हो. सो बेसिकली यू आर पुटिंग अ स्लाइस ऑफ 1 2 4, क्या 1 2 4 के एलिमेंट्स को न्यू लिस्ट में ले आओ, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड. यू कैन यूज कॉपी मेथड ऑल्सो, वो भी चला के देखिएगा. फर्स्ट ईयर आपको समझ में आ रहा है Yes, ma'am. बेटा? Yes, आप ma'am. लोग ठीक है. Yes, आई ma'am. आई एम एज्यूमिंग दैट यू पीपल आर एक्टिव ऑन द स्क्रीन, ठीक है. मुझे किसी के फेस नहीं दिख रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू जज दैट. सो आप रोक के पूछिए, आपको लगता है स्पीड स्लो करानी है तो आप वो भी बताइएगा. वी आर ऑन द 33rd स्लाइड ऑफ दिस, 39 स्लाइड्स हैं इसमें, ठीक है. नाउ देयर इज अ रिमूव फंक्शन. Remove method is also there. Now the remove method searches for a given particular element in the list and removes the first matching element. फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को ही रिमूव करेगा, बाकी एलिमेंट्स को नहीं रिमूव करेगा. मान लीजिए एक ही एलिमेंट 5 बार आ रहा है तो it will remove it from the first matching index. The remove methods take a single element as an argument and removes it from the list. If the element argument passed to the remove function does not exist, तो obviously वो error देगा. The method का syntax is like this, list dot remove bracket element. जिस element को आपको हटाना है, index नहीं, element. So let's say 5 78 12 26 and 50 is the list. I have the original list printed like this.
ठीक है, ये बेटा यहाँ 50 का ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है आपको, दैट मीन्स इट हैज टू बी हियर बेसिकली। नाउ आई एम कॉलिंग द फंक्शन। अब आप यहाँ देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिंपल आपकी लिस्ट चेंज कर देता है, रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। सो यू विल राइट लिस्ट डॉट रिमूव एंड यू आर राइटिंग द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, लेट्स से 12 को रिमूव करना है तो यू राइट ब्रैकेट में 12। अपडेटेड लिस्ट प्रिंट कराओगे तो 12 हट चुका होगा, बाकी सारे एलिमेंट वुड बी देयर, 5 78 26 एंड 50। सो दिस इज रिमूव फंक्शन। there's reverse function, reverse means basically it reverses the given list, आपको उल्टा करके दे देगा। तो अगर आपको यही काम करना होता बेटा, वुड हैव बीन अ tedious task, आपको लूपिंग लगानी पड़ती है एंड थिंग्स वुड हैव बीन, बट देन दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू। सो आप सीधा एक लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन कॉल करेगा, नो आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस बिकॉज रिवर्सिंग में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो लिस्ट है उसको उल्टा करना है बस। ठीक है, तो दैट लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन विल automatically reverse the list. Let's see the example. Reverse the list using slice operator. यहाँ आपकी लिस्ट है बेटा, आपने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा ली तो ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो गई। रिवर्स लिस्ट, तो आप लिस्ट को रिवर्स इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लिस्ट के दोनों एंड्स मत दीजिए, स्टार्ट और एंड, एंड यू राइट -1 एज द स्टेप। -1 मीन्स उल्टा चलते जाइए, ठीक है, डिक्रीज करते जाइए। सो देन यू विल हैव द रिवर्स, और यू कैन यूज बाय रिवर्स फंक्शन ऑल्सो। आप डायरेक्टली लिखिए लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन कॉल करिए, तो अब आप दोबारा लिस्ट नाम के फंक्शन अपनी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे लिस्ट को, तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो चुकी होगी। सो लिस्ट आर इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल, तो दे कैन चेंज देयर एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स ही चेंज हो रहे हैं, 1 की जगह 55 हो जाएगा, 5 की जगह 11 एंड सो ऑन। सो दिस इज रिमूव रिवर्स फंक्शन। देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो लाइक सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स सॉर्टिंग कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट को अरेंज कर देगा। तो सॉर्ट मेथड सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट, sort method sorts the element of a given list in a specific order that is ascending or descending. This is the method. How to write it, you write the name of the list, जो भी नाम है, my list, new list, whatever you your list name is xyz, dot sort function कॉल करिए with no arguments required like this, तो आप अपना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर पाएंगे। अगर आपको उसमें करना है डिसेंडिंग में, तो आप यहाँ देखिए बेटा लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट आपने प्रिंट कराई, लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किया, फिर दोबारा लिस्ट को प्रिंट कराया, आपकी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। दिस वाज असेंडिंग ऑर्डर 1 6 15 51। इफ यू वांट टू डू इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू राइट, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, then you will get your sorted list as 88 55 like this. Please remember this, that you have to do it like this. So this was I think all, these are the built-in functions। बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं, हम कुछ फंक्शंस आपको इसलिए बता रहे हैं सो दैट दीज फंक्शंस कैन बी अंडरस्टूड बाय यू, स्पेशली बाय दोज हु डोंट हैव अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। उनको अगर ये फंक्शंस यूज करने आ जाएंगे तो जब वो बाद में कोई नया फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे which you have not read here or which you find in the library, then you will be able to understand them as simply as what you have done for the few methods which we have taught in class. So आपके पास list है बहुत सारी, copy, reverse, sum, sorted, mix, max, min, max, list, length. These functions are there. Understand their description, understand their syntax of using it, and then you'll be able to do it. Is this clear, first year, beta? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we have done almost everything with reference to list. लिस्ट क्रिएट से शुरू हुए थे, लिस्ट के अंदर ऑपरेटर्स कौन से यूज हो सकते हैं वो हमने किए, लिस्ट के अंदर कितने फंक्शंस अवेलेबल है, हमने ऑलमोस्ट 8-10 फंक्शंस यूज किए। धीरे धीरे उन फंक्शंस को आप ये देखेंगे, यही फंक्शंस ऑलमोस्ट स्ट्रिंग में भी अवेलेबल थे और यही फंक्शंस ऑलमोस्ट टपल में भी अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज द वे हाउ यू राइट इज अ डिफरेंट, is different in string, the way you how write in is different in probably in list, and tuple भी जो हम आगे करेंगे उसमें भी लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। So let's start with tuple today. It's right now 9:15. टपल को भी मैं बहुत इसी स्पीड से चलाऊंगी बेटा, क्योंकि हम स्ट्रिंग पढ़कर आ चुके हैं, तो स्ट्रिंग हैज गिवन अस अ बेस फॉर लिस्ट एंड आई एम अज्यूमिंग दैट द सेम बेस ऑफ लिस्ट वुड नाउ बी टेकन अप एज एन एग्जांपल फॉर योर टपल्स। बस डिफरेंस आपको इनिशियली पता चल जाना चाहिए कि स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है लिस्ट के साथ, लिस्ट में डिफरेंस क्या है टपल के साथ। काम सबका वही है, वी नीड टू डिस्कस द ऑपरेटर्स, वी नीड टू डिस्कस द मेथड्स विच आर देयर। सो आई एम स्टार्टिंग विद टपल टुडे, देखते हैं कितना होगा, नहीं होगा तो बेटा छोड़ देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टपल्स नाउ।
So we are going to talk with about new data type which are called as tuple. Tuple are very similar to list, इसलिए आप please comparison करते चलिएगा. They are similar to list except that they are immutable. They cannot be changed. List में तो हम elements को change कर पा रहे थे, tuple में वो काम हम नहीं कर सकते. They are created using parenthesis. लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए थे, यहाँ पर हमें राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस यूज करने पड़ेंगे टू क्रिएट अ टपल रादर देन स्क्वायर ब्रैकेट जो कि हमने लिस्ट के लिए यूज करे थे. वी जनरली यूज टपल. अब पॉइंट आता है कि व्हाई डू वी यूज टपल जब हमारा काम लिस्ट से हो सकता है. सो व्हाई डू वी यूज टपल? वी यूज टपल फॉर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, बट वो तो लिस्ट में भी थे, ठीक है. एंड लिस्ट फॉर होमोजेनियस. तो ज्यादातर यूजुअली क्या होता है, लिस्ट दो इट कैन केटर टू हेट्रोजीनियस डेटा. हेट्रोजीनियस डेटा मींस डिफरेंट डेटा टाइप. स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर टपल भी हो सकता है. बट यूजुअली व्हेन यू आर डूइंग लिस्ट आप एक जैसा टाइप का डेटा यूज करते हो फॉर योर कन्वीनियंस. इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग दैट यू यूज सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स, बट देन इट इज यूजुअली यूज दैट वे. तो टपल में क्या होता है, हम हेट्रोजीनियस डाल सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हेट्रोजीनियस डेटा यूज कर सकते हैं. सिंस द टपल आर इम्यूटेबल, बट चूंकि डेटा इम्यूटेबल है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जहां जहां आपको ऐसे डेटा स्टोर करने हैं वेयर यू डोंट वांट टू गेट देम चेंज ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग, यू वुड यूज टपल. क्योंकि लिस्ट में तो आपके हाथ से कोई फंक्शन चेंज हो गया या कुछ आपने कोई फंक्शन यूज कर लिया, इट वुड अपडेट योर लिस्ट, इट वुड चेंज योर लिस्ट. बट हियर इन केस ऑफ टपल, none of the function will affect your original tuple. So since tuple are immutable, iterating through tuple is faster than list. तो जो कोई चीज immutable होती है, जो चेंज ही नहीं हो सकती, that is a bit faster. And that is the reason जहां आपको थोड़ा फास्ट सीक्वेंसिंग चाहिए, फास्ट डेटा एनालिसिस एक्सेस चाहिए, वहां आप टपल प्रेफर करोगे rather than list. So there is a slight performance boost, I would say. Tuples also contain immutable items that can be used as key for dictionary. यूजुअली हम की जो अपना, अगर आप डेटाबेस की बात करें बेटा, तो वहां पर एक की एलिमेंट्स होते हैं. नाउ दिस इज द की फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा. सो आपकी की भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी की चेंज होगी तो डेटा ही चेंज हो जाएगा. सो योर डेटा एक्सेसिंग वुड आल्सो चेंज, डेटा अंडरस्टैंडिंग वुड आल्सो चेंज. सो यूजुअली टपल्स को हम वहां यूज करना प्रेफर करते हैं जहां कोई एलिमेंट ऐसा है जो चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग अ प्रोग्रामिंग. एंड व्हाट आर द डेटा? स्पेशल डेटाज आर कीज. तो डिक्शनरी के अंदर, आई होप सो वील टेक वन क्लास ऑन डिक्शनरी ऑल्सो. डिक्शनरी के अंदर एक की नाम की चीज होती है. नाउ दैट की नाम की चीज शुड नॉट बी चेंज्ड. आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर फॉर सेकंड सेम बेटा. Yes, ma'am. Yes, एनीबडी, ma'am. एनीबडी फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी? कंचन, आपको कुछ समझ में आ रहा है? इज शी हियर इन क्लास? कंचन Yes, ma'am. बेटा, आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? ओके. एंड फ्रॉम मैनेजमेंट, एनीबडी प्लीज ओपन अप योर माइक फ्रॉम मैनेजमेंट. फाइनेंस, stats वाले स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैथ्स, Yes, ma'am. बेटा शालिनी आप कौन सी उसमें हो, सेक्शन मैथ्स में हो बेटा? एनीबडी फ्रॉम मैथ्स कैन स्पीक अप. Yes, ma'am. हर्षिता, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. Yes, ma'am. प्लीज बेटा, फॉर दोज हु आर न्यू टू प्रोग्रामिंग आई वुड आस्क यू टू डू प्रैक्टिस ऑफ व्हाट ऑल एग्जांपल्स आर देयर. ठीक है, सारे मेथड सारे फंक्शन प्लीज रन करके देखिएगा. ठीक है, जितना रन करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी एबल टू डू देम, बिकॉज लेटर ऑन बाद में जब प्रोग्राम्स आएंगे, अभी तो डेटा साइंस के प्रोग्राम शुरू नहीं हुए हैं, वी आर जस्ट डूइंग पाइथन राइट नाउ. ठीक है, once data science programs would be there, those programs would be a bit longer ones.
और उन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को समझने के लिए आपको अगर बेसिक नहीं आता होगा तो यू वुड गेट स्टक अप देयर। तो ये बेसिक वाला पार्ट प्लीज करके रखिए, सो डोंट, आप कर लोगे तो आपके लिए ईज होगा। सो आई एम कमिंग बैक अगेन। ओके, 56 ऑलरेडी हो चुका है, तो वील स्किप, अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर बेटा, 2 मिनट का और कराते हैं एंड देन आई क्लोज। So tuple contains immutable items which can be used as a key for dictionary, क्योंकि key should not be changed. With list this is not possible, क्योंकि अगर list में use करेंगे तो that key is a mutable item, so that should not be there. If you have any data that does not change, implementing it as a tuple will guarantee that it will remain write protected. ठीक है, अगर आपको नहीं चेंज करना है तो आप tuple यूज करिए, क्योंकि tuple will always give you a guarantee that it won't change the data. Now how to create a tuple? हम जैसे creating a list से शुरू हुए थे, ऐसे creating a tuple से शुरू होंगे. So let's say you have a tuple is created by placing elements in parenthesis यानी round bracket and a comma is separated. तो जैसे आपने list बनाई थी, लेकिन आपने लिस्ट में बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, यहाँ आप कॉमा ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाओगे. द पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शन है, आप पैरेंथेसिस नहीं भी लगाओगे तो भी कल चल जाएगा, बट द ट्रेंड, but the way or the, I should say, the decorum of making tuple is this only, that आपको standard optional way ना use करके standard तरीका use करना है, that you have to use square round brackets. It helps us, it helps you to differentiate also. It's a good practice. A tuple can have any number of items and they may be of different type, जैसे आपके लिस्ट में भी होते थे, integer भी हो सकता है, float भी हो सकता है, list और string etc कुछ भी हो सकता है. So you try to do this example. tuple के अंदर let's say I have bracket, round bracket like this, one quotes में hello and then 3.5, तो you have in various types of elements. tuple के अंदर आप list भी दे सकते हो, tuple के अंदर आप tuple भी दे सकते हो. You have nested tuple, इसे हम बोलते हैं nested tuple. tuple के अंदर ही list है, tuple के अंदर ही tuple है. Tuple can be created without parenthesis also, which is called as tuple packing like this. But please don't prefer this method because this gives you a confusion. So this was about creating tuple. Next slide, हम अगली क्लास में बेटा elements access करना, indexing, changing a tuple, एक ये और देखेंगे, and deleting tuple, all similar kind of things that we have done in list, we will do that. I think I should stop now. Is it fine, beta? We'll flow in the next class for tuples and then probably we'll shift to numpy.